Hello everyone. So today we are going to discuss about a very important chapter for class 8, that is light. We all are aware about that there are so many things around us which we can see, right? Which we can see because of light, right? But the most important part is eyes, right? Eyes ke bina we can't see, we can't visualize the world because this is a sense. We have, humans are having the 5 senses. So in junior classes you might have done about light shadows, right? In class 6 you have studied about a little bit that term reflection, right? So light ke साथ साथ we can see with the light, but because of some phenomena due to which light help us to visualize the world, and that is reflection. Very important, reflection. आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि why plants looks green, why rose is red, why sky is blue? Why? Because of some phenomena. These phenomena in detail you will study as compared to class 8 in 10. But in class 12 you have a full-fledged unit on optics, जिसके अंदर आप सभी phenomena relate करोगे. Phenomena related to light कौन कौन से होते हैं? One is reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, dispersion. So these are the 6 phenomena which are related to light. But now in class 8, first of all, we must understand the definition of light. So what is light? Light is a form of energy which produces in us a sensation of vision, right? Light है तो हम देख सकते हैं, अगर dark room है तो eyes भी हैं तो भी we can't see, right? So we need light. Now the question comes, what happens when we switch on the light and things are visible now? We can visualize, we can see the things easily. What happens? So actually when the light is on, right, in the room, if you switch on the light, what will happen? The light will spread, the light will move. We know that light always moves in straight line. So light starts moving and strikes on the object and come back to your eyes. Now striking on the object and coming back to your eyes, why? That phenomena is known as reflection of light. So what is reflection of light? Reflection of light. Very important, right? What I said, light is going, right? Here is the object striking and coming back to our eyes, and we visualize the things like this. So this phenomena we are going to discuss here in a little bit explanatory form. Like this is the surface, right? That is the surface. Now in this surface, what we have, one side is polished. These blue color line which you can see, these are the polished. So that is polished surface. Okay, and जो ये ऊपर वाला है, that is reflecting surface. Okay, now ये जो पॉलिशिंग है ये होती है हमेशा सिल्वर की. बिकॉज सिल्वर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. तो पॉलिश की जाती है ताकि एक साइड इसकी बिल्कुल डेड हो जाए एंड अदर साइड विल वर्क ओवर इट, राइट? सो हाउ दे डू? नाउ वन रे ऑफ लाइट विल कम एज आई टोल्ड यू, राइट? एक रे आएगी यहां पे, आके स्ट्राइक करेगी एंड स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, राइट? तो इस तरीके से वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं. बट इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो एक सेंटर में एक लाइन होती है ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से स्टार्ट होके ऐसे, राइट? सो वी कैन नेम दिस रेज. ये जो रेज होती हैं इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट? And that we call reflected ray.
इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि जो नॉर्मल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर, ये याद रखना है आपको, राइट। देन उसके बाद there are laws which we are going to discuss it later. First of all, we will write the definition for reflection of light. तो reflection of light की definition बनी बेटा हमारे पास, bouncing back of light, bouncing back of light after striking the reflecting surface, right? Reflecting surface in the same medium, सेम मीडियम के अंदर बेटा लाइट आती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो पॉलिश है इसको कोटिंग भी बोल सकते हैं कि एक तरीके की लेयर बना देते हैं उसके ऊपर, ओके, कोटिंग, सिल्वर की लेयर बना के उसको पेंट करके बिल्कुल सिल्वर की तरह ऐसे। यू माइट हैव सीन कभी भी घर पे जो सिंपल मिरर होता है, अगर आप उसको देखो टूटने के बाद उसके पीछे रेड कलर की लेयर बनी होती है, राइट। तो वो जो रेड कलर की लेयर है उसके अंदर सिल्वर लगा होता है नीचे, राइट। बिकॉज अब ये भी आपको पता होना चाहिए व्हाई वी आर यूजिंग सिल्वर, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, राइट। उसके बिना उससे अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट सिल्वर, ओके, राइट। देन आफ्टर दिस वी हैव फ्यू टर्म्स, जैसा कि आपने देखा डायग्राम के अंदर, डायग्राम में मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, यहाँ पे रेज हैं, नाम दिए हैं उनको अलग अलग से, एंड वी नो दैट कि जहां पे दो रेज मिलती हैं वहां पे क्या चीज बनती है, कि नई टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में एंगल, व्हाट वी कॉल एंगल। तो यहाँ पे भी एक एंगल बन गया और यहाँ पे भी एक एंगल बन गया। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। जहां पे रे आके स्ट्राइक करेगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो ये हो गया आई, एंड सेम वे जो रे जा रही है वो बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अगर आप ध्यान से देखो, देयर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन दीज। व्हाट इज कॉमन? कि जो एंगल है वो मैंने किसके साथ लिया, नॉर्मल के साथ, चाहे तो वो इंसिडेंस है, राइट, चाहे वो रिफ्लेक्शन है, दोनों में नॉर्मल आती है। तो क्योंकि एक लाइन तो हमें लेनी पड़ेगी जिसके साथ एंगल बनेगा, सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. Okay, so one by one we are going to define these terms. Okay, what are these terms? The terms related to reflection of light. First is incident ray. In incident ray, the ray before striking the reflecting surface, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले जो रे होगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अभी स्ट्राइक नहीं की है उसके ऊपर, ओके। सेकेंडली वी कॉल रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? द रे after striking the reflecting surface, very simple, कि स्ट्राइक करने से पहले जो होगी वो इंसिडेंस, राइट, क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट होता है, फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट है मतलब स्ट्राइक करने से पहले। आर हो गया लेटर, लेटर का आर आ गया तो वो स्ट्राइक करने के बाद, राइट। एंड थर्ड एक और रे बनाई है हमने, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इतना हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज इसके बिना तो ना तो एंगल बनेगा ना ही कुछ लॉ हमारे वेरीफाई होते हैं। तो व्हाट वी कैन से, नॉर्मल क्या होती है? द परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन सरफेस, दैट इज नोन एज नॉर्मल, ओके। देन we have angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ फिर?
एंगल बिटवीन, बिकॉज एंगल कब बनता है, दो लाइंस के बीच में। तो कौन कौन सी दो लाइंस, दो रेज इसमें यूज हुई है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, राइट। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन वी हैव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर इंसिडेंट रे ली है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। वेरी सिंपल। तो क्या बनेगा इसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो दीज आर द टर्म्स। सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझना है। 5 टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, राइट। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर, जिसके अंदर इंसिडेंट रे होती है, दिस इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। प्लेन जब दो लाइंस के बीच में जो सरफेस बनता है, जैसे पेज है, पेपर होता है कॉपी का, पेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी हमारे एक प्लेन है। तो ये प्लेन हो गया, ओके, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो आफ्टर दिस देयर वर एक्सपेरिमेंट्स डन, राइट। लाइट्स लगा लगा के देखा गया कि कैसे लाइट निकलती है, रिफ्लेक्शन होती है तो कैसी रिफ्लेक्शन होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिस एंगल पे वो जाके स्ट्राइक करी है और वो ऐसे घूम के आएगी, नहीं, या ऐसे कहीं भी जाएगी। तो कौन डिसाइड करता है, क्योंकि इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर लाइट ऑन की, लाइट ऑब्जेक्ट पे लगी और ऑब्जेक्ट पे लग के भाई ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, राइट। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके लिए कुछ रिजल्ट्स बने, उनको हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भैया वो जो स्ट्राइक करने के बाद जाएगी तो वो ऐसे ही नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे जिनको वो फॉलो करेगी। तो व्हाट आर दी रूल्स, क्या रूल है उसके अंदर, सो दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। लीजिए, यहां पे हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया। मतलब एंगल I is equal to angle R always भी है, there is no chance कि कभी भी इक्वल ना हो, राइट। वरना सपोज कीजिए कि when the ray of light is coming on my face, somebody standing here to look at me, तो यहाँ पे फेस पे पड़ने के बाद अगर वो रे इस तरफ जाएगी तो हाउ ही और शी कैन विजुअलाइज मी, कैसे देख सकता है वो। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मींस जितने एंगल पे वो स्ट्राइक करेगी उतनी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वंडरफुल क्वेश्चंस आर देयर, कि उसमें दिखाया गया कि 5 पर्सन्स आर स्टैंडिंग और सामने मिरर है, तो वो बंदा कहां पे खड़ा हो कि उसको ABCDE या C या ना दिखे, D दिखे। तो वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो तब तक के लिए आपको ये समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देयर वर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंडली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal, all lie in same plane, all lie in same plane, right। ये देखिए सेम प्लेन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे, डिफरेंट प्लेन में नहीं है, वो तो हमें इमेज देख के ही क्लियर हो रहा है कि वो कहां पे। ओके, नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, these laws I think, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ओके। तो आपको एक तो डायग्राम भी यूज हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स की, डायग्राम बनी होगी ऐसे, ये रही है।
इस एरो से आपको पता लगेगा कि कौन सी इंसिडेंस रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। कई बार ये भी हो सकता है कि एरो आपको ऐसे लगा के दे दे, तो ये नहीं कि आपने इधर इंसिडेंस लेंगे, एरो देखना जो जा रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरफ आएगा, राइट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम बनी होगी कुछ इस तरीके से और आपको गिवन होगा ऐसे, दिस एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड एंगल आर एंड एंगल आई, राइट, नॉट 60, दिस 60, राइट। अब देखिए, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला एंगल जो है मेरे पास, ये गिवन है मुझे 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लेकिन ये पता है कि ये जो टोटल एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो व्हाट आई विल राइट, एंगल आई प्लस 60 इज इक्वल टू 90, तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल रिफ्लेक्शन कितना आ गया, 30 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए 30 डिग्री। वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। ओके ओके, तो ये तो होगी हमारी एक टाइप, फाइन। दूसरी तरफ हमारे पास ये रे है, राइट, ये टोटल एंगल दे दिया 80 डिग्री, कहेगा फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हमें दोनों एंगल पता है कि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गए, दैट मींस क्या गिवन है हमारे पास, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू गिवन है भैया 80 डिग्री, बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर आई कैन पुट आई की जगह पे आर पुट कर लो, चाहे आर की जगह पे आई पुट कर लो, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 40 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ओके, राइट। देन एक और तरीके से थर्ड केस भी बना सकते हैं हम, जैसे ये रेज है, दिस इज नॉर्मल। अब आपको ये एंगल दे दिया पूरा ऐसे, ये एंगल 140 डिग्री है, राइट, टोटल एंगल यहां तक। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए, इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये जो एंगल है हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एक्स्ट्रा रहेगा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो क्या गिवन है मेरे पास, टोटल एंगल ये 90 हो गया, देयरफॉर एंगल आई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 140 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल तो आई हो गया और बाकी एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया मेरे पास, 140 माइनस 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कुछ भी नहीं करना। ओके, सो दिस वे द क्वेश्चंस कैन बी गिवन टू यू। तो ये तो बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि डायग्राम बेस्ड है। तो डायग्राम बेस्ड के अलावा आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज दिस, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो इस तरीके से आपको चीजें करनी आएंगी। तो हाउ यू कैन डू, बाय सिंपल ड्रॉइंग द डायग्राम and then you can identify what is given and then you can solve. बस आपको laws of reflection याद रखने। I hope all of you have understood. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much.